pasaran thanks video yung mga chairman ka F1 ng lagatay yung ke program hindi mana chairman na organ no myself dalawang speaker mulut evangelist lun pisaray missionary CRC Nirgu dalawang Bible reading na tabiran tabo offering prayer tanya kakke special song Ako muli special song waktu mo yan ay. Inang mulu Bible verse ko po yan. Dami gailang mulu Bible doctrine slogan muli ay. Hola tu mana verse 22 lo na agisul na dedin sabonam. Ilik sula ay irwin sudua ko. Nok demang takot deh ngok kalau kadu ay akong pongol paru. Praise the Lord. Hallelujah. Gay-gay na sabon na pwede na dam-dam na sabon na ay no dito sito kom no paap de mane no irwin sila may ay big karalo seriya ke karalo ya di suto karalo kadu na ulun mandu dan himigay la hintay ngol paapam sikariya dalo kagako ko uyang manya ay dalawang ngolo Matthew 7 verse 7 8 lok mane ngolo dinay dan ko ay praise the Lord takama garaw la jo Kala jungo adi lo ingko ridot burden lo adi takeman tumu puna makama takama diam tajin no Ephesians chapter 6 verse 4 kan kita kan lo abu kita nolok ke ome o kediam bumo mapaka dan penan bulung kenyil kain sumo toka Dalok ke rutum ke nitom luilla sisa motoka. Praise the Lord. Bible Oribona teolo isor kayang hamisha dudato ngalisaram boktu palaun ko pwede de. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Magam jiwa
Muge kamabe ngoyong bature hage lagi do hagam jilake hage kamabe ngoyong bature Wulu kahing wulu fellowship lo ya, sibo ko abu fellowship lo garasar ko madu, ne garasar में एक बार को डाक भी तो पाए इंट्रोडक्शन टाइप का Praise the Lord. सिर्फ सी न्यू लोग है ये आई मन काम के मान का दे पर Praise the Lord. मेरा नाम इतर लाके है और मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ Praise the Lord. Mga binatasan niya mo, thank you past time natin. Offering prayer. So, here, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7 को पढ़ूंगा. उसके बाद मैं अपने डायलॉग में प्रार्थना को पढ़ूंगा. Verse 6, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows plentifully will also reap plentifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ayana tayo mulu takame mekendola operation amno ministry kakendo benda jidak. Ayana tayo no larik sidagla mulum takame nok ayani jidagla sigum mejaya ba jiladak ba tukopako bedam katon dagla no pilibongom jiligla kanga ao derengna yalo jisuga amindo kundu. Amen. Praise the Lord. ina makadi welcome kang nagagre bla dai potro ko hiu ki sticker na Lucas Sharma welcome lagi Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ये 3 बार प्रभु को हम लोग तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. तो सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक है कि responsibility comes with accountability. Romans chapter 5 verse 12 में ऐसा कहता है कि ये संसार में पाप जो एक मर्द का द्वारा आया होता है, एक बाबा का जरिया आया है, एक आदमी का द्वारा ये संसार में पाप आया है, और उस पाप आने का कारण सब का ऊपर में मौत आया होता है, मृत्यु मौत आ गया, डेथ आ गया सबका ऊपर में. पाप जो एक आदमी का द्वारा आया होता है संसार में, सचमुच में पाप आदम का द्वारा आया है क्या? ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है पॉल? बोलने से ईडन गार्डन में आदम और ईव फल खाने का बात को कर रहा है, जो परमेश्वर ने मना किया है, उसको बोल रहा है पॉल यो. लेकिन 1 Timothy chapter 2 verse 14 में पॉल फिर बोल रहा है कि ईव को धोखा दिया बोलता है, लूसीफर जो शैतान जो, आदम को नहीं. Eve was deceived, not Adam. इसमें भी बहुत एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन मिलेगा हम लोग ना. शैतान जो ईव को धोखा दे के ना ईव जो फल को खाया है, फल को कौन तोड़ के खाया पहले? ईव, अने अब वो नहीं. लेकिन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में पॉल बोल रहा है पाप जो
एक मर्द का द्वारा आया होता है, लेकिन पाप कौन किया फर्स्ट? अनेक किया है, तो अब वो नहीं किया है ना। लेकिन पौल बोल रहा है कि पाप जो संसार में अनेक का द्वारा नहीं, अब वो का द्वारा आया है, ऐसा बोल रहा है। अरे ये तो कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कैसे हो रहा है ये? उसका हम लोग उसको फाइंडिंग करना है। इसलिए बोलता है यहाँ में अथॉरिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। यहाँ में है हिसाब किताब देना पड़ेगा। हर बाबा लोग, आप और हम भी, हम सब एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आगे में खड़ा होके अब बाबा अबो बनने का, पिताजी बनने का आपका लंबा लिस्ट निकलेगा। टीवी में जैसा दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट वैसा दिखाई देगा, हिसाब किताब करेगा, शुरू होगा वहां में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम को उस बगीचा में रखा और एक आज्ञा दिया। आदम को बोला है कि इस बगीचा में जितना भी फल है आप खा सकता है, लेकिन जो बीच में जो फल है, जो गच्छे, उसे आप तोड़ के मत खाओ। जिस दिन आप उसे तोड़ के खाएगा उसी वक्त आप मरेगा, मौत आएगा बोल के आदम को एकदम प्रिसाइसली, एकदम क्लियर कट बताया। एक पिताजी अपना बेटा को जैसा समझाया, वैसा परमेश्वर ने आदम को समझा के ही उसको रखा है वहां में बगीचा में। ये हो गया। वो समय में ईव नहीं बना है। कहानी को आप लोग बैकग्राउंड को अच्छा से समझना पड़ेगा, तब जाके रोमन्स 5:12 को दिमाग में आएगा। अभी तक बगीचा में कौन है? जानवर है, परमेश्वर है और अबो आदमी है। आने नहीं आया अभी तक सीन में। ईव को बनाया ही नहीं अभी तक। ईव को सृष्टि नहीं किया है। ईव को तो बाद में करता है। ये हुक्म किसको दे रहा है? आदम को दे रहा है, आने को नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा अभी क्यों ये बोला है। अकाउंटेबिलिटी आएगा अभी हम लोग का ऊपर में। Call to the man, Adam, where are you? पाप करने का बाद परमेश्वर जो किसको ढूंढ रहा है, किसको बुला रहा है? ईव को ना आदम को? आदम को बुला रहा है, आने को तो नहीं बुला रहा है ना। यहाँ पे इतना मतलब कंसर्न है परमेश्वर जो। क्यों परमेश्वर जो पाप करने का बाद में भी आदम को ही ढूंढ रहा है, बाय नेम पुकार रहा है। यहाँ में आदम कहाँ में है? पौल ने क्यों संसार में पाप जो एक मर्द का द्वारा आया है बोलने से अभी का जो कहानी बताई, ये है आदम का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसका मिसेस को, ईव को रुकाने का। हस्बैंड का ये कर्तव्य बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईव को ये बताए, है नहीं खाना है ना, हम दोनों मत खाओ। पिता परमेश्वर ने मना किया है इस फल को खाने के लिए। परमेश्वर ने हमको सीधा बोला है जिस दिन ये फल को खाएगा मरेगा बोल के बताया है। तो अने मत खाओ, ये तो बहुत डरावनी चीज है। परमेश्वर दुख हो जाएगा, हम लोग पाप में गिर जाएगा। ये तो गलत है। जिसने हमको बनाया उसका बात नहीं मान के रहना, उसको फल को खा देना, ये तो बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। परमेश्वर दुख हो जाएगा। मत करो, मत करो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आदम का ऊपर में दिया था। लेकिन एक परमेश्वर का हुक्म को फेस टू फेस सुनने वाला पिताजी हो के भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना फैमिली का ऊपर में वो डिस्चार्ज नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, गाइडेंस नहीं कर पाया, डायरेक्शन नहीं दे पाया। इसलिए बहुत होता है कि पाप जो खाने में फल तो ईव ने शुरू किया, लेकिन उस पाप आने का अकाउंटेबिलिटी जो है आदम का ऊपर में आता है। इसीलिए यहां से हम लोग ये मालूम चलता है कि बाबा लोग, पिताजी लोग, हम लोग जो है सब रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है बाइबल का हिसाब से।
शादी करने दिल है, ठीक है, शादी कर लिया, शादी करना है, वो भी परमेश्वर का एजेंडा है, हेवनली मैंडेट है, शादी किया, लेकिन सिर्फ शादी करने से भी नहीं होगा। शादी करने का बाद आदम जैसा अगर हम बनेगा तो हम लोग भी परमेश्वर का बगीचा से हम लोग को भगा देगा। तो अंतिम में क्या हुआ है, आदम और ईव को बगीचा से भगा दिया, मीन्स परमेश्वर का उपस्थिति से उसको कास्ट आउट कर दिया, भगा दिया, निकाल दिया परमेश्वर जो। इसका आत्मिकता इनटेक क्या है बोलने से, स्पिरिचुअल इनसाइट्स हम लोग को क्या थ्रो करना है ये कहानी से, ये स्टोरी से बोलने से, हर एक पिताजी या एक पति जो है, हम लोग परिवार में एक अधिकारक है, हम लोग एक हेड है, हम लोग स्पिरिचुअली हम लोग को पोजीशन किया गया है परमेश्वर ने, विद अथॉरिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद अकाउंटेबिलिटी। अब और हमको फैमिली में रखा गया है। मेरा 3 बेटी है, मेरा मिसेस है, हम 5 हैं। उन चारों का जीवन जो है सिर्फ ये शरीर का भूख को सिर्फ ध्यान देने से नहीं होगा। ऐसा स्पिरिचुअल फादर, मेरा मिसेस के लिए ऐसा स्पिरिचुअल हस्बैंड, मेरा 3 बेटी के लिए ऐसा स्पिरिचुअल फादर, मेरा कर्तव्य बनता है कि उन चारों का आत्मिकता जीवन लेवल कैसा है वो देखना आपका और मेरा काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है सबसे प्राइमरी मकसद पिताजी का, वो है। हाँ, बिजनेस करके आगे बढ़ना, अमीर बनना, ऑफिसर बनना, वो भी है, लेकिन वो सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। इस मसीही लोग का हिसाब से बोल रहा है, वचन का हिसाब से हम बोल रहे हैं। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग का एम, हम लोग का गोल, पिताजी लोग का, बाबा लोग का, आपका परिवार को परमेश्वर का ट्रैक में, परमेश्वर का वचन में ले जाना, ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट होना है। इफिशियंस चैप्टर 5 में क्या बोलता है, उसमें हम लोग एक ग्राफ मिलेगा, एक डायग्राम मिलता है, वो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 नीचे पढ़ते जाओ। सबसे पहले परिवार में हेड कौन है बोलने से हस्बैंड है बोलते हैं, वहां में वैसा लिखा है, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, वैसा लिखा है। परिवार में पति जो है सबसे ऊपर पोजीशन में हेड है, आप और हम हस्बैंड। सेकेंड में हम लोग का मिसेस लोग आएगा, माइकी लोग आएगा, वाइफ्स। थर्ड में बच्चा लोग आता है, चिल्ड्रन। ये है फैमिली का स्ट्रक्चर। और पति का ऊपर में हेड कौन है बोलने से क्राइस्ट, यीशु मसीह बोला यानी। जब तक हम पति जो है यीशु का साथ में दोस्ती नहीं करेगा, मेरा परिवार में यीशु का गुण, यीशु का कैरेक्टर, यीशु का नेचर को हम, मेरा मिसेस और मेरा बच्चा लोग को हम सप्लाई करने नहीं सकेंगे। मेरा परिवार को यीशु मसीह का कैरेक्टर, उसका नियम नीति, उसका नेचर, उसका डूज एंड डोंट्स को मेरा परिवार को अगर हम देना है तो हम यीशु का साथ में अच्छा दोस्ती करना जरूरी है। इसलिए क्राइस्ट इज द हेड। क्यों यीशु मसीह हम लोग का ऊपर में माथा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये उसको पोजीशन में रखा है बोलने से, ताकि हम पिताजी जो है उसका नेचर को यीशु से हम लेके अपना परिवार में हम सप्लाई कर सके और हमारा परिवार सुख शांति से जी सके और हम लोग अनंत जीवन पा सके। Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7, Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7, पिताजी लोग को यहाँ में हुक्म दिया है, मेरा बारे में अपना बच्चा लोग को बताओ बोला है। तो यहोवा जो सोते वक्त, खाते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त मेरा बारे में बताओ, ऐसा बोला है। आई कमांड यू बोला है, हुक्म, इट्स नॉट एन अपील, रिक्वेस्ट नहीं किया परमेश्वर, जो आज्ञा दिया है पिताजी लोग को। कलवरी क्रॉस में किसने मरा है बताओ, अनंत जीवन किसमें है बताओ, चोरी करना पाप है बताओ, व्यभिचारी करना पाप है बताओ, ईश्वर का प्यार को बताओ, झूठ बोलना पाप है बताओ, सब बताओ, ईश्वर का बारे में बताओ, ईश्वर का नेचर का बारे में बताओ। Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7 में लिखा हुआ है। Proverbs chapter 22 verse 6, अपना बेटा बेटी को ट्रेन अप करो बोला है।
मेरा रास्ता में, मेरा नियम नीति में, मेरा वचन में भरा कराओ। प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6 बाइबल में ये लिखा है। वो कौन करेगा? पिताजी लोग का काम है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4, पिताजी लोग, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4, अपना बेटा बेटी लोग को प्रोवोक मत करो बोलता है। इंस्टेड ब्रिंग देम अप इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है। गुस्सा मत दिलाओ ना बच्चा लोग को, बेटा लोग को जहाँ तहाँ बात मिसा मिसी मीनिंगलेस रेगलेस बात बोल के, उसका जगह में अपना बेटा बेटी लोग को मेरा नियम नीति में बना करो। फादर्स बोला है रे, यहाँ में तो क्लियरली लिखा हुआ है। अंकल, मदर्स, माँ लोग, अंकल लोग, लीडर्स लोग नहीं बोला है, पिताजी लोग बोला है यहाँ में इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 में। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का ऊपर में। अधिकार, वो अधिकार जो है वो सिखाने का, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका मिसेस कैसा है, प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, चर्च जाता है कि नहीं जाता है, टाइट्स देता है कि नहीं देता है, पड़ोसी का साथ में वो कैसा रह रहा है, शाम को प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, सुबह प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, खाना खाने से पहले प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, बेटी लोग को प्रार्थना कर सिखाता है नहीं सिखाता है, वो सब देख के सिखाना वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है पिताजी का। अगर ये सब करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो जजमेंट दिन में परमेश्वर हम लोग को आशीर्वाद देगा। नहीं तो अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं निभा रहा है तो आप और हम जजमेंट दिन में रोना पड़ेगा, हिसाब किताब लेना, ऐसा बोल रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मतलब सिर्फ देखना, देख के मुख से हुक्म करना बच्चा को, मैगी को, वो नहीं है। प्रैक्टिकली हम खुद करके दिखाना पड़ेगा। अब खुद चर्च जाना पड़ेगा, अब खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको बोलता है। नहीं तो आदम को जैसा किया है, आदम तो फल खाया ही नहीं तोड़ के, लेकिन हिसाब किताब उसका माथा में आया है। क्यों? तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था तुम्हारा माइकी को बताने का। जो फल मत खाओ बोलकर मैंने मना किया, वो क्यों नहीं बताया अपना मिसेस को? परमेश्वर का ये दंड आया है आदम का ऊपर में। तुम्हारा कर्तव्य था ईव को बताने का, ये खाने से पाप है, ये खाने से परमेश्वर गुस्सा होगा, जजमेंट आएगा, ये बताना तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन तुम चुपचाप हम सृष्टिकर्ता को भूल के अपना मिसेस का बात को मान के खाया, अभी जाओ। परमेश्वर ने उन लोगों को बदन से भगा दिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया, इसलिए वो हिसाब किताब को देना पड़ा। Praise the Lord. Hallelujah. Inavel bisa, alu kelerangin, alu oma aula nai. Isra alu bisa ke ministry lokom, ya isu kayaknya. Ane sahar pa isor lagi dengan aipa pokoknya, mau apa lalu ko point lagi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. धन्यवाद ना लास्ट पार्ट देखने। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद भगवान परमेश्वर आज के शाम के सर्विस के लिए धन्यवाद। यही ना धन्यवाद तुमने ही शुरुआत से अंत तक आपने चलाया, इस समारोह को सुंदर रीति से चलाया। भगवान के नाम पर हम सभी Next, another fellowship from Lord. एकदम बारो आईपी बोलंगा। यीशु का मिलने धन्यवाद ना लास्ट पार्ट ना रुको। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise